Good morning, students of class 8. This is your physics teacher Vikas Upal. Yes, we are meeting after a long time. Unfortunately, I was not well, but I am doing fine now. Though I have some weakness, but I would overcome that soon. In regards to the chapter that is ongoing, I have been told that we have to cover the last topic, which is about convex mirror. Now, I won't go much into detail as to what we have covered so far in this chapter. We have covered the concept of refraction. I hope you must have understood that. And in addition to that, you studied about spherical mirrors. You learned about concave mirror and the way the different images are formed and what is the nature of the image and how do we use it in general life. Today we will study a little about convex mirror. Now before we go into that, I would just like to briefly discuss one thing about mirrors. Mirrors, as we know, that you studied in class 7th as well, that plane mirror, it's something like that. Now this is a thin metallic glass film that we have. The ray of light, and at the back it is all silver. So what we have done is basically we have made this surface a little transparent. You must be remembering about transparent medium, about translucent medium, about opaque medium, that the light can pass through the transparent medium completely. Translucent medium are those mediums through which the light can pass to some extent, say 50-60% depending on the medium. And opaque medium is such through the light cannot pass anyways. So what we have done by basically silvering this mirror from the back, that we have made sure that this surface at the back is opaque, this is transparent. So any ray of light which comes here goes through this thin film and then strikes the opaque surface and reflects. Okay? This is the concept that we learned in plane mirrors during 7th class. This is what we will be following in spherical mirrors as well. Now basically चीज क्या थी जो हम अंडरस्टैंड करना चाहते थे, जैसे हमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन के टाइम देखा कि प्लेन मिरर्स में हमें सेम साइज इमेज मिलती है जितनी ऑब्जेक्ट की होती है, वो वैसी ही दिखती है जैसे ऑब्जेक्ट है. एज यू मस्ट बी नोटिसिंग इन योर प्लेन मिरर्स दैट वी यूज एट होम, क्योंकि वो वैसे ही पिक्चर हमें दिखाता है. हम चाहते थे कि कुछ ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मिरर को हम कुछ ऐसी शेप दे सकें जिसकी वजह से हमें पिक्चर बड़ी या छोटी दिख सके, हम ज्यादा एरिया कवर कर सकें, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो उतना ही एरिया कवर करेगा जो उसके सामने है. ठीक है, तो हम ये चीजों का सवाल, द क्वेश्चन वाज इन आवर माइंड एंड वी स्टार्टेड आस्किंग दिस क्वेश्चन. That is where this concept of spherical mirrors came into picture. Okay? Now spherical mirrors, concave mirror में जैसे आपने पढ़ा that with the help of concave mirrors it is possible that we can, if we place the object between focus and pole, not only we get an enlarged image, but the image is also virtual and erect. मतलब सिर की जगह सिर दिखता है, पैर की जगह पैर दिखता है. तो उस कॉन्सेप्ट को हमने काफी यूज किया कनकेव मिरर्स की एप्लीकेशंस में. हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में, बट द रेस्ट ऑफ द इमेज फॉर्मेशन में जो आपने देखा है कि कनकेव मिरर सिर्फ फोकस और पोल के अलावा जितनी भी इमेज फॉर्मेशन है सारी रियल एंड इन्वर्टेड है. रीजन फॉर दैट इज बिकॉज कनकेव मिरर इज अ काइंड ऑफ कन्वर्जिंग मिरर. तो वो रेज ऑफ लाइट जो पड़ती हैं
उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है where actually the rays of light meet and gives us the concept of real image. Now let's study what happens in convex mirrors. Convex mirror is not the same as concave mirror. First of all, it's the bulging surface is the reflecting, जो outer वाला है, जो inner inside है वो silvered है, that is the opaque surface. concave mirror के बिल्कुल opposite है। तो कहां पे concave mirror जब rays of light strike करती हैं उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, convex mirror diverge करता है, so it is called diverging mirror. So this is also a 1 mark question which is asked many times. Name the converging mirror, so you need to answer concave mirror, and in case asked what is the diverging mirror, your answer should be convex mirror. Now what do we mean by that? We diverge करता है. So what happens? As you can notice, this is the opaque surface. तो अपने पास लाइट इस तरफ से भी आती है, बट क्योंकि ये ओपेक सरफेस है यहां से कुछ नहीं होना. Only the light which comes from this side would get reflected. Now the way it would get reflected would be such. ये पैरेलल रे ऑफ लाइट भी आ रही है, ये इधर ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, and if you have another ray of light, it would also diverge. Now in reality these ray of light are not meeting. You can clearly see this is the reflected ray, this is another reflected ray. ये उधर जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये कभी मीट करेंगी? नो. ठीक है, बट हमें क्योंकि ये मिरर है, ठीक है, मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो हमारे आईज भी मिरर के फ्रंट में होती है. जो हम रेज ऑफ लाइट देख रहे हैं वो इसी साइड से देख रहे हैं, इस साइड से नहीं देख रहे. तो हमें ये लगेगा कि ये वाली रे ऑफ लाइट जो हमारी आंखों में पड़ेगी, इट इज कमिंग फ्रॉम this extended version. Similarly, this ray of light would come, तो जहां भी ये मीट करती दिख रही है हमें लगेगा कि ये यहां से आ रही है इस पॉइंट से, which is called focus. ठीक है, so this is our first प्रॉब्लम रिगार्डिंग कन्वेक्स मिरर, जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. इंफिनिटी का मतलब है बहुत दूर है. इंफिनिटी का मतलब आप ये लो कि ये रे ऑफ लाइट जो आ रही है पैरेलल आ रही है, लाइक फ्रॉम सन. दो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज फाइनाइट, बट हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो इंफिनिटी से बहुत दूर से आ रही है. ठीक है, जब सन से रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर में पड़ेंगी, ठीक है, तो हमें ये लगेगा कि आफ्टर डाइवर्जेंस वो रे ऑफ लाइट पीछे इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यहां पे हमें इमेज फॉर्मेशन दिखेगा. नाउ बिकॉज दिस इमेज फॉर्मेशन इज अ पॉइंट इमेज, तो बहुत डिमिनिश्ड रहेगा. आपको ये याद रखना है कि जो कन्वेक्स मिरर में इमेजेस बनेगी, जो मैं आगे प्रूफ भी करूंगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस होंगी. दैट मीन्स virtual means the rays of light would not actually meet, they would appear to meet at some point and they would be erect. मतलब सर की जगह सर दिखेगा, पैर की जगह पैर. Those are called erect images. उल्टी नहीं दिखेंगी, inverted नहीं दिखेंगी. And
they will be highly diminished. ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स सारी कन्वेक्स मिरर के केसेस में एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ यू कैन सी फ्रॉम इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकस। इंफिनिटी से आप पास आना शुरू कर दो और ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, the image would be formed between focus and pole, highly diminished, virtual and direct. Let's for instance notice this thing, ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, इसको अगर मैं, क्योंकि ये हॉलो ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर ये पॉइंट आएगा, is called center of curvature. तो दिस फोकस एज वेल एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर दे आर बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर में आपने देखा होगा कि जो कनकेव मिरर में आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो फोकस ये आपका ओपेक सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये ओपेक सरफेस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब फ्रंट ऑफ मिरर में है, बट एज फार एज कन्वेक्स मिरर इज कंसर्न दे आर एट द बैक ऑफ द मिरर। तो हम क्या करते हैं कि आपका कन्वेक्स मिरर है, जितना इसका फोकस जो कि है उतना डिस्टेंस इधर ले लेते हैं, फोकस एंड देन इट कैन बी एक्सटेंडेड, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन है दिस फोकस और पोल के बीच में होगी। लाइक देयर आर क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखें, देन व्हाट, तो हाउ वुड यू ड्रॉ इट? तो एक आप ये लेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन, क्योंकि बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज डैश लाइंस वर्चुअल, और फ्रंट ऑफ द मिरर जो लाइंस होती हैं वो पूरी बोल्ड लाइंस होती हैं। वो बिहाइंड द मिरर एक्चुअली में नहीं है, ठीक है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम, ये जो रे ऑफ लाइट यहां पे ऐसे मिरर पे स्ट्राइक करती है वो ऐसा लगता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सो बिहाइंड द मिरर इज ऑलवेज डैश्ड लाइंस, फ्रंट ऑफ द मिरर इट्स ऑलवेज बोल्ड लाइन। तो एक तो लाइन आपकी ये होगी जो ऑब्जेक्ट से, जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट का सर है, सर से ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्राइक की मिरर पे जो कि कर्वेचर से जैसे आ रही थी। वी नो द रूल्स कि जो कर्वेचर से आ रही है वो जैसे आएगी वैसे ही जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, सॉरी, ठीक है। अब सेकेंड लाइन, इसको हम पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। इट वुड डाइवर्ज। नाउ दिस लाइन वुड अपीयर आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां से हम, क्योंकि हमारी आईज इस साइड है, हमें ऐसा लगेगा कि ये ऐसे फोकस से आ रही है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस लाइंस seems to be meeting at this point. यहां पे आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन जाएगा। So no matter wherever we keep the object, here we follow the same concept, एक पैरेलल लाइन जो डाइवर्ज होगी और वो फोकस से आती नजर आएगी, और सेकेंड लाइन जो सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये बीच में फोकस और पोल के मीट करेंगी। वर्चुअल इमेज
erect image and highly diminished image. Okay, so these are the things which are related to the ray diagram of convex mirror. Now moving on, if we check on what are the uses of these mirrors, these spherical mirrors. So if we look at into this, ये आपको क्वेश्चंस काफी बार आता है. Give us the uses or 4 uses of spherical mirrors. You need to remember when the question says give us the 4 uses of spherical mirrors, you need to give us the name of the mirror for which you are giving the use. आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वाला मिरर इस काम में आता है और उसका नाम क्या है. For example, I have written concave mirror. तो concave mirror is used in torch and headlight as a reflecting mirror. आपने टॉर्च या गाड़ी की जो हेडलाइट्स देखी होंगी, उसमें एक पीछे ऐसे रिफ्लेक्टिंग मिरर रहता है और आगे उसके